और उपस्थित सभी भाई और बहनों, my warm welcome to all IRC members, engineers, researchers, scholars, contractors, consultants, and international delegates gathered here in Bhubaneswar for the 84th annual session of Indian Road Congress. मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का यह आयोजन बहुत विशेष है क्योंकि 3,500 से ज्यादा डेलीगेट यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए हैं। दिस इज द इंडियाज बिगेस्ट रोड इंजीनियरिंग नॉलेज प्लेटफॉर्म। ये एक नॉलेज प्लेटफॉर्म है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिगार्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन, regarding construction of tunnels, bridges. This is the appropriate time for all of us that we need to upgrade the technology and innovation research in this sector. I am always telling to the people two important philosophies. One is innovations, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices. We name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. India is the fastest growing economy in the world. The dream of our Prime Minister to make India as the third largest economy in the world. Our mission is to make India Vishwa Guru. And for that reason we need good infrastructure, world standard infrastructure. The water, power, transport and communication. And this is very important that what type of technology we are going to use for making this road, bridges and tunnel. It should be cost effective. Quality point of view, it is very important. It should be 100% perfect. At the same time, we need to plan in a way by which we have to reduce the construction cost. So this is the knowledge platform. And where your discussions, your seminars, your research papers going to inspire and motivate the people of this country, particularly the engineers of this country, to get new futuristic vision for development of our country. IRC is the soul of India's road engineering. We need ownership, serious approach, commitment for quality, and the transparency and the corruption-free system. At the same time, we need to protect our ecology and environment. A lot of waste material which are available, where we need to plan the policy by which we can use the waste material. I always remember the second important philosophy is that no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate vision of the leadership, appropriate technology, where we can convert waste into wealth. पिछले 90 सालों से IRC कोड्स, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स और डिजाइन प्रैक्टिसेस तैयार कर रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर एक बार देख लीजिए ये सब बातें जो आप कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और पैरामीटर के कितने बराबर है, कितने पीछे और कितने आगे हैं। हम हिंदुस्तान को विश्व में आगे ले जाना चाहते हैं। नई नई प्रैक्टिसेस, नई नई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स, इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और इसलिए कोड्स, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स और डिजाइन प्रैक्टिसेस को आप इनकरेज करिए। आप में से बहुत से लोग सरकार में काम करते हैं और सरकार में जब नए प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोग अगर फेल होता है तो तुरंत वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई करो। मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि नया काम करने के लिए प्रयोग करने पड़ेंगे और प्रयोग जब करेंगे तो कुछ यशस्वी भी होंगे और कुछ नहीं भी होंगे। If the mistakes are bona fide, forgive them. If the mistakes are malified, then you are free that you can take action against them.
पर अगर आप नए नए इनिशिएटिव को इनकरेज नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे और नीचे वालों को यही कहते रहेंगे कि जैसा चल रहा वैसे चलाते रहो, तो चेंजेस कैसे आएंगे, बदल कैसे आएंगे, वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हम कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस सेशन में आप जरूर इसके ऊपर विचार करिए। हिंदुस्तान का हमारा जो सड़क नेटवर्क है अब वर्ल्ड में नंबर 1 की तरफ जा रहा है और मैं ये चाहता हूं, जिसके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए मैं यही मानता हूं कि जहां रोड डेवलप होते हैं वहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री आती है। जहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है और जहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है वहां रोजगार निर्माण होता है और जहां रोजगार निर्माण होता है वहां गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होती है। हम हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं। हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से प्रगति और विकास की विजन के साथ फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट को आत्मसात करके हम हमारे देश को दुनिया की आर्थिक ताकत बनाना चाहते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसर्च, इनोवेशन एंड फील्ड एक्सपीरियंस, इसको आप एक दूसरे से शेयर करिए। आईआरसी का बहुत बार मैं आईआरसी के अध्यक्ष को और उनके पदाधिकारियों को मैं बहुत बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आईआरसी को फुल टाइम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टैब्लिश करिए। मैं भारत सरकार की ओर से आपको मदद करूंगा, राज्य सरकार भी मदद करेंगे। कांस्टेंट फुल टाइम रिसर्च करिए। रिटायर्ड होने के बाद जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनका गाइडेंस लीजिए ताकि आने वाले दिनों में हम हमारे इस क्षेत्र में क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ला सकते हैं। मेरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सड़क निर्माण में ऐतिहासिक प्रगति की है। Our ministry has secured the highest ever budgetary allocation of rupees 2,87,000 crore। पैसे की कोई कमी नहीं है। हम लोग अगर हमारे रोड को मॉनिटाइज करेंगे तो हमारे पास 15 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं। प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, रिसोर्सेस का नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेंडिचर का है, खर्चा करने का है। और पैसा खर्चा करना है तो इसके लिए पॉजिटिविटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए और फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए। मैंने हमारे एक अधिकारी को मजाक में कहा था कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैंने कहा आपका तो आपके पत्नी पर तो प्रेम है ही, पर उससे भी ज्यादा फाइल पर ज्यादा प्रेम है। एक बार आती है तो आपके यहां से निकलती ही नहीं है। जल्दी जल्दी निर्णय करिए, जो करना है वो करिए, पर निर्णय करिए। मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं, मैं बात करता हूं, ये लैंग्वेज काम की नहीं है। मैं बहुत बार ये कहता हूं कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। आई लाइक ऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। फिर अगर कोई लोग गलत निर्णय भी करते होंगे तो भी मुझे अच्छे लगते हैं, पर निर्णय करने वाले ईमानदार लोगों से कभी कभी दिक्कत ये होती है कि गाड़ी आगे नहीं जाती है। ईमानदारी भी होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश को हमको आगे लेके जाना है। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, बड़े बड़े। हमने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं 1995 में मुंबई में, महाराष्ट्र में मंत्री था, तब पहली बार मुझे देश का द्रुतगति महामार्ग बनाने का सौभाग्य मिला मुंबई और पुणे के बीच में। तब 55 फ्लाईओवर्स मुंबई में बनाए और समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला।